بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برزخ یا عالم برزخ کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے، مگر اس کے متعلق مکمل تفصیل بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ برزخ کے معنی پردے اور دو چیزوں میں حد یا رکاوٹ کے ہیں۔ یہ موت کے بعد سے قیامت تک کے وقفے کا نام ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ آخرت کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب میت کے ثواب کے لیے صدقہ و خیرات اور ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت و سکون ملتا ہے، جبکہ آخرت کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جو جزا یا سزا برزخ میں شروع ہوتا ہے وہ آخر میں ملنے والی جزا یا سزا ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ الغافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح اور شام لایا جاتا ہے۔ علماء کرام عالم برزخ کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ ایک جہان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے تک کے لیے بسا رکھا ہے۔ یہ ہماری اس دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنے کہ یہ دنیا ماں کے پیٹ سے زیادہ وسیع ہے۔ اس جہان میں ایمان و کفر کا اثر آنکھوں سے نظر آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، عالم برزخ میں وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی جن میں ہمارے اعمال بھی شامل ہیں۔ علماء کرام شرعی حوالوں سے بتاتے ہیں کہ عالم برزخ کی ابتدا منکر نکیر کے سوالات سے ہوتی ہے۔ جب رشتہ دار اور دوست احباب میت کو قبر میں رکھ کر واپس لوٹتے ہیں اور روح انسانی جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے تو منکر نکیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر میں آ کر مرنے والے سے سوالات کرتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ اگر مرنے والا ان سوالات کے صحیح جواب دے دے تو پھر آسمان کی طرف سے ایک آواز دینے والا کہتا ہے کہ میرے بندے نے یہ سچ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ بس جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہاں کی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن اگر مرنے والا کافر یا منافق ہے تو وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اہل ایمان عام طور پر یہ جانتے ہیں کہ انسان دو مختلف عناصر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے جسم کی اسی مٹی سے تخلیق اور نشو نما ہوئی ہے، جبکہ اس کی روح اللہ تعالیٰ کی پھونک سے پیدا ہوئی۔ لہٰذا انسان نہ حیوان ہے اور نہ ہی فرشتہ۔ اس کے وجود میں مادی اور ذہنی اور جذباتی صلاحیتوں اور رجحانات کی شکل میں متضاد چیزیں پہلو با پہلو پائی جاتی ہیں۔ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے جس حصے نے مٹی اور اس کی پیداوار سے نشو نما پائی تھی وہ مٹی کی طرف لوٹ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں ہے۔ ترجمہ: اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس میں ہم تم کو واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اب رہ گئی روح تو اس کا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ ہم پوری باریکی سے نہ اس کی جگہ جانتے ہیں، نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ وہ جس جسم میں تھی اس سے اب اس کا کیا تعلق ہے۔ کیا یہ تعلق منقطع ہو گیا ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کیا روح اسی جسم میں لوٹے گی یا اس جیسے کسی اور جسم میں؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ انسانی شخصیت موت سے فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کا احساس اور شعور پوری طرح باقی رہتا ہے۔
आंख कान खोने से वो बसारत और समाज से महरूम नहीं हो जाता, बल्कि ये हो सकता है कि इसकी देखने सुनने की सलाहियत ज्यादा तेज हो जाए। हो सकता है हम मादी चीजों के सिलसिले में महारत रखते हों, लेकिन रूह के ताल्लुक से हमारा इल्म महदूद बल्कि बिल्कुल सिफर के बराबर है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि जहाद के मार्कों में जो लोग शहीद हुए थे वो सिर्फ हमारी निगाहों में मर चुके हैं, क्योंकि हमसे गायब हैं, लेकिन दर हकीकत वो जिंदा हैं और इनके ताल्लुक से 5 बातें काबिल तवज्जो हैं। नंबर 1 कि वो मुर्दा नहीं, जिंदा हैं। वो परवरदिगार आलम के करीब हैं। उनका ठिकाना पुरआसाइश है और इन्हें रिस्क पहुंचाया जाता है। इन्हें जो कुछ हासिल हुआ वो इससे खुश और अल्लाह की नवाजिश से सरशार हैं। दुनिया में वो जिन अजीजों और रिश्तेदारों को छोड़ गए हैं उनके सिलसिले में मुतमईन हैं और बिलाखिर एक दिन इनके साथ इकट्ठा होंगे। जिस तरह कुरान मजीद में इरशाद है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए इन्हें मुर्दा ना समझो, वो हकीकत में जिंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क पाते हैं। जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है इस पर खुशो खुर्रम है और मुतमईन है कि जो अहले ईमान इनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे, इनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। समात और बसारत से मुतालिक हमारे आलात महदूद सलाहियत रखते हैं, इसलिए हम हर चीज का एहसास नहीं कर सकते। कायनात की दीगर मखलूकात हमें देखती हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। लेकिन अहले इल्म के बकौल किसी चीज का इल्म ना होना अदमे वजूद का सबूत नहीं होता। जैसे अगर हम एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करते हैं, मुर्दा भी एक जगह से दूसरी जगह सफर करके जाता है, जहां आखिरत की जिंदगी शुरू होती है और जहां कयामत के दिन जबरदस्त अदालती कार्रवाई और हौलनाक हिसाब किताब होगा। लिहाजा दोनों दुनियाओं के दरमियान का मरहला बरज़ख कहलाता है। बदकारों के साथ बरज़ख में मामले की नौयत वैसी ही होगी जैसे पुलिस वाले मुजरिमीन को पकड़ने के बाद करते हैं। पहले इब्तदाई तहकीकात होती है, फिर मुल्जिमों को जेल में डाल दिया जाता है और फिर अदालत में कार्रवाई होती है। नेक लोगों के साथ मामला इसी तरह से होता है जैसे किसी मुसन्निफ या गैर मामूली शख्स को इनाम देने के लिए बुलाया जाए। इसे इज्जत के साथ लाया जाता है और फिर एक अच्छे कमरे या हॉल में आराम से बिठाया जाता है, जहां इसे इनाम पेश किया जाता है। जो लोग बुरे हैं इन्हें कयामत से पहले अपनी आइंदा सजा की झलक मिलने लग जाती है, जबकि नेक लोगों को पहले ही दिन से नेमतों इकराम के आसार नजर आने लग जाते हैं। अहम बात तो ये है कि मौत महसूस दुनियावी जिंदगी से एक गैर महसूस जिंदगी की तरफ सफर का नाम है, जिसके बारे में हमने सिर्फ सुन ही रखा है, जबकि सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसे यकीनी तौर पर जानते थे। चुनाचा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जानकनी का वक्त आया तो उनकी बीवी ने आह बुलंद की, तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नारा लगाया कि कितनी खुशी की बात है कि अपने प्यारों से मुलाकात होगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से। हकीकत यही है कि मौत एक ऐसी दुनिया की तरफ मुंतकली का नाम है जिसकी आबादी रोज बर रोज बढ़ रही है। अजदाद, फिर आबा और फिर औलाद, फिर पोते शुरू से वहाँ की आबादी बढ़ाते आ रहे हैं, पिछले अगले लोगों से मिलते जा रहे हैं और सब मिलकर कयामत के दिन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रूह जिस्म छोड़ती है आलम बरज़ख शुरू हो जाता है, जैसे कि सूरह इनाम की आयत नंबर 93 में है, काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जबकि वो सकाते मौत में डुबकियां खा रहे होते हैं। फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं, लाओ निकालो अपनी जान, आज तुमको इन बातों की पादाश में जिल्लत का अजाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर तोहमत रख के नाहक बका करते थे और इसकी आयत के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे। इंसान दुनिया में खाली हाथ आया था, फिर इसमें अपना रंग दिखाता गया, अब फिर दुनिया को छोड़कर खाली हाथ जा रहा है। ना माल, ना दौलत, ना मंजिलत, ना इक़्तिदार, ना ताकत, कुछ भी साथ नहीं। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लो तुम अब वैसे ही तन तन्हा हमारे सामने हाजिर हो गए
जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो तुम पीछे छोड़ आए हो। ऐसा लगता है ये इंसान दुनियावी जिंदगी में जितनी सरकशी करता है उसके बकदर इसकी पेशी की तैयारी होती है। बरज़ख के मराहिल से ही बेइज्जती और सज़ा का आगाज शुरू हो जाता है, जैसा कि फ़िरौन के किस्से से जाहिर होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, दोज़ख की आग है जिसके सामने सुबह और शाम वो पेश किए जाते हैं, और जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी तो हुक्म होगा कि आले फ़िरौन को शदीद तरीन अजाब में दाखिल करो। ये जैसा कि कुरैश के इन सरदारों के साथ मामला हुआ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ते हुए मारका बदर में मारे गए। जो लोग हमसे रुखसत हो जाते हैं उनके साथ क्या पेश आता है हम महसूस नहीं कर सकते, बल्कि हम तो आलमे गैब की कोई चीज़ महसूस नहीं कर सकते। वो एक वसी और हौलनाक दुनिया है। कोई जान बरज़ख तक पहुँचे और जो कुछ बदला इसके लिए तैयार किया गया है उसे पाने में ताख़िर नहीं कर सकती, चाहे रिश्तेदारों, दोस्तों, पीरोकारों की कितनी ही मोहब्बत इसे हासिल हो। जानकनी की हालत की तस्वीर कशी करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, मरने वालों की जान जब हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंख से देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस वक्त तुम्हारी बानिस्बत हम इससे ज्यादा करीब होते हैं, मगर तुमको नजर नहीं आते। तो अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो तो इसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते अगर तुम सच्चे हो। इंसान की आजिज़ी और बेबसी और लाचारी देखिए। मौत की ताकत के आगे वो बिल्कुल सिफर की हैसियत रखता है। मौत जिंदगी का पर्दा चाक कर देने वाली है। इसके बावजूद जिंदगी से मोहब्बत हमें अंधा और बहरा बना देती है, और जजा और सजा से गफलत इससे भी ज्यादा संगीन है। हदीस से मालूम होता है कि जो लोग इंतकाल कर चुके हैं वो फिर हमारी तरफ वापस नहीं आ सकते। यही अल्लाह ताला का फैसला है, और शहदाए अहद को जवाब दिया गया था जब उन्होंने दुनिया में वापस आकर फिर लड़ने और शहीद होने की आरजू की थी। लिहाजा अरवाह को हाजिर करने की बात सही नहीं हो सकती। हाँ, जिन्नात और शयातीन की तरफ से कुछ खिलवाड़ हो सकता है। अलबत्ता हकीकत यही है कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो अब क़यामत के होने का इंतजार कर रहे हैं आलमे बरज़ख में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।